जो साडा अज दा टॉपिक is oxidation and reduction. So what do you mean by oxidation? First of all, we will do the definition of oxidation. Oxidation ਦੀ definitions ਦੋ ਆ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਿੰਪਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਯਾਨੀ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ, मतलब या तो ऑक्सीजन ऐड हो जाए या हाइड्रोजन बाहर निकल जाए, इट इज ऑक्सीडेशन। एंड का मतलब की है कि दोनों प्रोसेसेस इकट्ठियां भी हो सकदियां हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब की है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। इट सिंपली मीन्स कि ऑक्सीजन ऐड हो सकता है या हाइड्रोजन बाहर हो जाए, दोनों चो अगर एक चीज़ भी हो गई, जरूरी नहीं कि दोनों हों, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਆ। ਪਰ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਰਹੂਗੀ। ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੇ ਮਤਲਬ, ਵੈਸੇ ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਔਰ ਤੇ ਐਂਡ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਵੈਸੇ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਜਾਂ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿਲਾਊਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੀ ਕਹਿਲਾਣਾ ਆ। यानी ऑक्सीडेशन की है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, सो इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन। नाउ इनू डेफिनेशन अपनी कॉपी ते नोट कर लो, इनू अपनी कॉपी ते नोट कर लो। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इट इज नोन एज ऑक्सीडेशन, it is known as oxidation. Reduction note करो, reduction, reduction note करो। रिडक्शन ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ? ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਸਾਰਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮਟੇਨ ਲੱਗਾ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖੂੰਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ ਰਿਡਕਸ਼ਨ, RED ਉੱਤੇ ਪਾਵਰ N, ਰਿਡਕਸ਼ਨ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, मतलब ऑक्सीजन बाहर जाना, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड या और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। यानी कि अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਇਕੱਠੀਆਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, then this process is known as reduction. So this is the difference between oxidation and reduction. Oxidation and reduction are opposite processes. अगर एक रिएक्शन हो रही है, रिएक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ ਆ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਆ ਦੂਸਰੇ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ देयर आर ਦੋ ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, ਇਫ देयर आर टू ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, अगर एक ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਤਾਂ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਫ ਇਨ ਅ ਰਿਐਕਸ਼ਨ देयर आर टू ਰਿਐਕਟੈਂਟਸ, if in a reaction there are two reactants and if one is getting oxidized, if one is getting oxidized, then other will get reduced. If one is getting oxidized, then other will get reduced. यानी अगर एक दी ऑक्सीडेशन होएगी तो दूसरे दी रिडक्शन होएगी। अगर एक दी होएगी ऑक्सीडेशन तो दूसरे दी होएगी रिडक्शन। ये पक्की गल है किसी भी रिएक्शन दे विच। सो ऑक्सीडेशन की है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ते रिडक्शन की है, रिडक्शन हैगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और या एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। आई होप इट इज क्लियर। किसी में तक डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट इज नेक्स्ट लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। नेक्स्ट राइट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
OXIDISING, किते ऐसे लिखा होंगे किते Z लिखा होंगे। लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तुसी पूरा लिखियो क्योंकि मैनू माउस च लिखना प्रॉब्लम आती है। लिखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। देखो द स्पीशी ब्रैकेट च रिएक्टेंट लिखना तो लिख लो, याद रहूगा। द स्पीशी ब्रैकेट च लिखो रिएक्टेंट which oxidize others and gets reduced itself, it is known as oxidizing agent. The species bracket लिखो reactant which oxidize others and gets reduced itself is known as oxidizing agent। मैंने समझाना बाद दे विच। इस तो बाद लिखो reducing agent, the species ब्रैकेट लिखो reactant which reduce other and gets oxidized itself is known as reducing agent is known as reducing agent। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਕਰੋ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਤੇ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ मैं तुहानू समझाने की कोशिश करा तो आप सारे ने अपने घर अपनी अपनी इंश्योरेंस करवाई होंगी है, जिन्होंने असीं कह दें LIC करवाई है। अगर असीं पंजाबी भाषा सौखी जी गल करिए, क्योंकि असीं LIC एजेंट होंगे ना डिफरेंट असीं कहने LIC करवाई है या इंश्योरेंस करवाई है। जिहड़ा इंश्योरेंस करता है उन्होंने असीं नाम दिंदे आ एजेंट। इंश्योरेंस करन वाले नूं असीं नाम की दिंदे आ एजेंट, ठीक है। वी कॉल हिम एज एजेंट, हिम और हर कुछ भी हो सकता है, वी कॉल हिम एज एजेंट। ਹੁਣ ਏਜੰਟ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਦਾ ਆ ਪਰ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਏਜੰਟ ਕੀ ਆ, ਏਜੰਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆ ਆਪਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪੋਲਿਸੀ ਕਰਵਾ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ। ਏਜੰਟ ਕੀ ਆ, ਏਜੰਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की मैं की डेफिनेशन लिखवाई, विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, यानी जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करेगा तो खुद रिड्यूस हो जाएगा। यानी कि अपने विचों ऑक्सीजन कढ़ के दूसरे को दे देगा, यानी दूसरे की होगी ऑक्सीडेशन, अपनी होगी रिडक्शन। या दूसरे का हाइड्रोजन कढ़ के आप ले लेगा, यानी जो दूसरे का हाइड्रोजन कढ़िया यदी होगी ऑक्सीडेशन, यदि की होगी रिडक्शन। दोबारा सुनो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है, पहले डेफिनेशन देखो ध्यान देना जो मैं लिखवाई है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की है, इट इज दैट स्पीशी विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड रिड्यूस इटसेल्फ, यानी जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है खुद रिड्यूस हो जाता। ये तो होगी डेफिनेशन। हुण इहदे नाल तुसीं ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली डेफिनेशन पढ़ लो। ऑक्सीडेशन की कहती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन की कहती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। हुण ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कह रहा है, इट इज अ स्पीशी विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड गेट्स रिड्यूस्ड इटसेल्फ, यानी जो दूसरे को तो ऑक्सीडाइज करे लेकिन आप रिड्यूस हो जाए। हुण अपने आप को रिड्यूस करना ते दूसरे को ऑक्सीडाइज करना, यानी कि जो अपने कोल ऑक्सीजन हैगा आ वो दूसरे को देता, यानी ये ऑक्सीजन ऐड हो गया दूसरे दे विच, यदि हो गई ऑक्सीडेशन क्योंकि ये हो गया एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और ये हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, तो इस करके यदि खुद की हो गई रिडक्शन। विद एग्जांपल भी असीं समझते हैं। या दूसरी चीज़ की है कि दूसरे का हाइड्रोजन ले लेना अपने कोल,
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ, ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ, ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ। ਹੁਣ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਰਿਡਕਸ਼ਨ। यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब की आ जो खुद रिड्यूस हो रहा, यानी कि या तो वो अपने विचों ऑक्सीजन बाहर कढ़ेगा या दूजे कोलों हाइड्रोजन ले लेगा, या अपने विचों ऑक्सीजन बाहर कढ़ेगा या दूसरे कोलों हाइड्रोजन लैके अपने आप दे विच ऐड कर लेगा, यानी दूसरे दी ऑक्सीडेशन करेगा ते अपनी रिडक्शन करेगा, उन्होंने असीं कहने आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਆ ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰੇ ਲੇਕਿਨ ਖੁਦ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਲ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਕਰ ਲਵੇ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ। अगला आ गया रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब की है दूसरे नू रिड्यूस करन वाला, एजेंट मीन्स दूसरे नू करन वाला। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब की है जो इट इज़ दैट स्पीशी जो मैं लिखा चुका है विच रिड्यूसेस अदर्स एंड ऑक्सीडाइजेस इटसेल्फ, जो दूसरे नू तो रिड्यूस करे लेकिन खुद ऑक्सीडाइज हो जाए। फॉर एग्जांपल वो दूसरे का ऑक्सीजन कढ़ के अपने विच ऐड कर लवे, यानी दूसरे की तो हो गई रिडक्शन क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚ ਨੇ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਹੋ ਗਈ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਲਵੇ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਕੀ ਆ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, यानी कि जो इन्हें अपना हाइड्रोजन बाहर कढ़िया यदि की हो गई ऑक्सीडेशन, तो जो दूसरे को हाइड्रोजन देता यदि की हो गई रिडक्शन। यानी कि दो प्रोसैसेस, कोई भी स्पीशी रिड्यूसिंग एजेंट कदों बनती है, जदों वो दूसरे का ऑक्सीजन ले लवे या अपना हाइड्रोजन कढ़ के किसी दूसरे को दे देवे, अपना हाइड्रोजन कढ़ के दूसरे को दे देवे या दूसरे का ऑक्सीजन ले लवे। हुण तुसीं मोटे मोटे तौर पर गल लिख लो। ਹੁਣ ਲਿਖੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਲਿਖੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ ਔਰ ਜਾਂ ਐਂਡ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਂਡ ਜਾਂ ਔਰ ਰਿਮੂਵਲ ਆਫ ਆਕਸੀਜਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖੋ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਲਿਖਣੀ ਆ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਬਾਰੇ ਲਿਖੋ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, पंजाबी च लिख लो या अपने इंग्लिश लिख लो, जो लिखना लिख लो, कि भाई कोई इदा दी स्पीशी जो दूसरे दा, कोई इदा दी स्पीशी जो दूसरे दा की करे, जो दूसरे दा ऑक्सीजन ले लवे या अपना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सॉरी पुट्ठा बोल गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मीन्स ये स्पीशी जो अपना ऑक्सीजन दे दे या दूसरे का हाइड्रोजन ले लवे, जो अपना ऑक्सीजन किसी दूसरे को डोनेट कर दे या दूसरे का हाइड्रोजन गेन कर लवे, और या एंड मतलब दोनों प्रोसैसेस भी हो सकती हैं ते एक भी हो सकती है। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आ, यानी जो अपना ऑक्सीजन दूसरे को दे दे, एरो तो देख लो, अपना ऑक्सीजन दूसरे को देता या दूसरे का हाइड्रोजन खुद ले लिया, इनू असीं कहने आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ते रिड्यूसिंग एजेंट इस तो उल्टा। रिड्यूसिंग एजेंट की आ, रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब की आ कि जो दूसरे को रिड्यूस करे खुद ऑक्सीडाइज हो जाए, मीनस जो दूसरे का ऑक्सीजन अपने विच ऐड कर लवे, या और या एंड मतलब दोनों प्रोसैसेस इकट्ठियां भी हो सकती हैं, और या एंड, ठीक है जी। जो अपना हाइड्रोजन दूसरे को दे दे, यानी खुद तो हो जाए ऑक्सीडाइज ते दूजे को कर दे रिड्यूस, उन्होंने असीं कहने आ
reducing agent. Now we come to the some examples. ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ examples ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਰਾਈਟ ਸਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਲਿਖੋ ਜੀ ਫਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਬੁੱਕ ਖੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। एक बुक खोली हुई एग्जाम आइडिया, उस तो अलावा मेरे को इस वेले कोई बुक खोली नहीं हुई। अच्छा नोट करो पहले एग्जांपल, Cu प्लस H2O gives CuO प्लस H2। एक चीज़ जो स्पैशली ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਪੀਜ਼ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ ਜਾਂ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋਊਗਾ। ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਕਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, हमेशा रिएक्टेंट वाली चीज़ में ही मेंशन करना है। ये चीज़ याद रखियो, हमेशा रिएक्टेंट वाली चीज़ में मेंशन करना। यानी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन केदी हुई वो हमेशा रिएक्टेंट दी ही हुंदी आ, प्रोडक्ट दी नहीं हुंदी। प्रोडक्ट तो सिर्फ सानू देख के पता लगता है कि केदी ऑक्सीडेशन हुई है, केदी रिडक्शन हुई है। हुण मेरा एक सवाल, सब तो पहला क्लास च सानिया आई सी, सानिया डिफाइन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ओहो मैं डिलीट ही करता। Addition of oxygen and removal of hydrogen। और या एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। अच्छा अगला सवाल मैनू पता नहीं दूजे नंबर ते कौन आया सी, शायद खुशी आई सी। खुशी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਆ। ਨਾਮ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। देयांश आ देखो ध्यान दे नाल, आ सी कॉपर, आ सी वाटर, आ हैगा कॉपर ऑक्साइड, ये हो गया कला हाइड्रोजन। यानी ये कोल पहला ऑक्सीजन नहीं सी, ये कोल बाद दे विच ऑक्सीजन आ गई, यानी कि कॉपर दी हो गई ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। देखो कॉपर में पहले ऑक्सीजन नहीं थी लेकिन बाद में यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड बन गया, यानी कि यहाँ पे तो ऑक्सीजन आ गई, यानी कि ऑक्सीडेशन हुई है। लेकिन ऑक्सीडेशन किसकी हुई है? कॉपर की हुई है। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है, चाहे ऑक्सीडेशन होवे चाहे रिडक्शन होवे, हमेशा रिएक्टेंट दी होनी है, प्रोडक्ट दी नहीं होनी। प्रोडक्ट तो सिर्फ सानू देख के पता लगता है कि किहदे विच किहड़ी चीज़ सीगी ते रिमूव हो गई। लेकिन अगर असी आंसर देना आ, वो आंसर असी किहदे विचों देना आ, वो असी रिएक्टेंट चों देना आ। हुण तुसीं साफ देख सकते हैं कि कॉपर तो बन गया कॉपर ऑक्साइड, यानी कि हो गई ऑक्सीडेशन। सो ऑक्सीडेशन केदी हो गई? कॉपर दी। हुण इत्थे सी वाटर H2O, लेकिन कल्ला की रह गया? हाइड्रोजन रह गया, यानी ये विच हो गया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन मीनस की हो गया? रिडक्शन। ते रिडक्शन केदी हुई आ? वाटर दी। मैं एक बार इन्हें दोबारा कराना, हजे और एग्जांपल्स आप करनी, एक बार आप क्लास और लगानी है। नोट करो, सब तो पहले मेरे को सी कल्ला कॉपर ते वाटर। प्रोडक्ट च मेरे को की बनया? कॉपर ऑक्साइड नाल बनया हाइड्रोजन, यानी कि जो मेरे को चीज़ पहला कल्ली पई सी उहदे विच ऑक्सीजन ऐड हो गया, यानी कि ऑक्सीजन ऐड किहदे विच होया? कॉपर दे विच, यानी कॉपर दी हो गई ऑक्सीडेशन। पर मेरे को इत्थे सी वाटर यानी H2O सी, इहदे तो मेरे को रह गया कल्ला H2, यानी कि इहदे विचों ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अगर ऑक्सीजन रिमूव्ड हो गई या रिमूव हो गई, इसका मतलब रिडक्शन हो गई। तो रिडक्शन केदी हुई है? रिडक्शन हुई है वाटर दी। और नीचे आंसर लिखो, लिखो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड। देखो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड मतलब ऑक्सीडेशन केदी हुई है? लिखो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड, स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड। एक मिनट तो पता नहीं कनेक्शन उड़ गया सी।
एक मिनट वेट। हाँ जी, अगर आवे स्पीशी ऑक्सीडाइज, मैं एक बारी फिर लिखदा आ बोर्ड ते जरा। पहले मैं रिएक्शन मेंशन कर दूंगा, Cu plus H2O gives CuO plus H2 gives CuO plus H2। यानी ਅਸੀਂ लिखना स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड, यानी ऑक्सीडेशन केदी हुई आ, वो हुई आ कॉपर दी, यानी कि Cu दी। ਤੇ स्पीशी रिड्यूस्ड, रिडक्शन केदी हुई आ, रिडक्शन हुई आ वाटर दी। सो इत्थे लिखो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड, पूरा लिख लो तुसी, मेरे को लिख नहीं हुंदा। इत्थे लिखो स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड, OXIDISED, स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड। स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड केड़ी हुई आ, कॉपर। अगे लिखो स्पीशी रिड्यूस्ड, स्पीशी रिड्यूस्ड, रिडक्शन केदी हुई आ, वाटर दी, H2O दी। देखो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन की कहती है, ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कहती है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का ऐड हो जाना। ਹੁਣ ऑब्वियसली तो सानू दिखता पिया कि ऑक्सीजन ऐड किहदे विच होई है, ऑक्सीजन ऐड होई है कॉपर दे विच, यानी स्पीशी ऑक्सीडाइज्ड किहड़ी हो गई, कॉपर। ते रिडक्शन का मतलब की हुंदा आ, रिडक्शन का मतलब हुंदा कि ऑक्सीजन निकल जाए या हाइड्रोजन ऐड हो जाए। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਆ कि साढ़े को ऑक्सीजन बाहर निकल गई है, यानी रिडक्शन की हुई है, H2O की हुई है। इतने तक सानू गल पता लग गई है। अच्छा जी, अगला आंदा वा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की डेफिनेशन असी की लिखी सी, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज दैट एजेंट विच हेल्प्स इन ऑक्सीडेशन ऑफ अदर्स, यानी कि जिहदे करके दूसरे की ऑक्सीडेशन हुई है। हुण देखो, तुसी देखो कि एक मिनट इरेजर कित्थे आ, एक मिनट, हाँ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਜਨ ਆਇਆ ਆ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, ਹਨਾ, ਵਾਟਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। यानी कि ਇਹਨੇ ਹੀ ਕਾਪਰ ਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, यानी कि ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਆ ਏਜੰਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਵਾਟਰ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕੀ ਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਉਹ ਵਾਲਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਆ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਬੈਲੈਂਸਡ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਾਪਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੋਇਆ। यानी कि ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਕਸੀਜਨ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ, यानी कि ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਾਟਰ। ਹੁਣ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੇ ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋ ਲਈ। ਕਿਹਨੇ ਖੋਲੀ, ਕਿਹਨੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਆ, ਕਿਹਨੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਖੋ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਉਹ ਖਿੱਚੀ ਆ ਕਾਪਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਇਜ਼ ਕਾਪਰ, रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉपर। मैं होर एग्जांपल्स करानी है, तुहानूं होर समझ लगूगा, पर इत्थों एक रिजल्ट नोट कर लो, इत्थों एक रिजल्ट नोट कर लो। मैं तां नीचे नीचे लिखा है, पहले एक रिजल्ट नोट कर लो, आपां नवीं क्लास ला के होर हजे लावांगे एग्जांपल्स। देखो रिजल्ट नोट करो कि जिहड़ी स्पीशी ऑक्सीडाइज हुंदी आ, द स्पीशी, नोट कर लो स्पेशली, स्पेशल नोट बना लो, द स्पीशी विच गेट्स ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, and the species which gets reduced act as oxidizing agent. The species which gets oxidized मतलब ਜਿਹਦੀ oxidation ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਂਦਾ ਆ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਉਹ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਆ, ਦ ਸਪੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੈਟਸ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਐਕਟ ਐਜ਼ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖੋ, ਦ ਸਪੀਸ਼ੀ ਵਿਚ ਗੈਟਸ ਰਿਡਿਊਸਡ ਇਜ਼ ਦ ਸੇਮ ਸਪੀਸ਼ੀ which act as oxidizing agent।
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਆ। ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਰਾ ਹੋਰ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆ CuO plus H2, ठीक है। मेरे को एग्जाम्पल नोट करी जाओ कॉपी पे। CuO plus H2 gives Cu plus H2O, ठीक है। रिएक्शन ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ बैलेंस ही है, ऑब्वियसली रिएक्शन इज बैलेंस। ਹੁਣ देखो की ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ, ਜੋ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਆ, ਕਾਪਰ, यानी कि रिडक्शन हो रही है। किहदी रिडक्शन हो रही है, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, क्योंकि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਕਸੀਜਨ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਤੇ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, H2 ਦੀ, ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਐਡ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਡ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਕਿਹਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, H2 ਦੀ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿ ਦਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਐਕਟੈਂਟ ਵੱਲ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਸਪੀਸ਼ੀ ਰਿਡਿਊਸਡ ਕਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਦੀ, ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ यानी कि CuO। दूजी चीज, जो स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है वो हैगी है H2, यानी कि इन्हें ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹਦਾ ਆਕਸੀਜਨ ਖੋਇਆ ਨਾ, यानी ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਤਾ, यानी कि it is acting as reducing agent, it is acting as reducing agent, यानी ਸਾਡੇ ਕੋਲ reducing agent ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, H2 ਹੋ ਗਿਆ। ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਕਿਹੜਾ ਆ, ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈਡ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਲੈ ਲਵੇ, ਉਹ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਪੜ੍ਹ ਲਈ 2 ਵਾਰੀ। ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਾਪਰ ਆਕਸਾਈड। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ कि सर ये पता नहीं लग रहा कि ये हम इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये आम हो जाता क्योंकि इन्ने साल हो गए मैंने पढ़ाते हैं, बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है। देखो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक चीज़ जो तुसी नोट करनी है कि सब तो पहला तो ये विचों तुसी लभ लेना आ कि ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਦੀ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। बस आ चीज़ लभ लो कि ਕਿਹੜੀ स्पीशी ऑक्सीडाइज हो रही है, ਕਿਹੜੀ स्पीशी रिड्यूस हो रही है। लभ लिया, बस इत्थे तक तुहाडा आंसर मान लो सही हो गया। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ। ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟ ਆਫ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਆਵੇ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰ ਵਟ ਟੂ ਡੂ, क्या करें, हमें समझ नहीं आ रहा, तो सब तो पहला तो ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਆ, ਕਿਹੜੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਸਪੀਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਏਜੰਟ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਗਈ ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਕਸੀਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਏਜੰਟ ਹੋਣੀ ਆ। इस करके एक बार तुसी क्लास दोबारा ज्वाइन करो, आप होर एग्जाम्पल्स करते हैं। एक बार क्लास दोबारा ज्वाइन करो, आप होर एग्जाम्पल्स करते हैं।